तो हमने पढ़ लिया था टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला ही क्यों कंसिडर करा. सो नाउ वी सी द फिफ्थ पॉइंट that is necessary to prove that why he is taking Drosophila for his experiment. So according to the fifth point, the contrasting characters, the different characters in the Drosophila can be seen under low power microscope very easily. So we can identify the eye color red, either it is red or white, and body color brown or yellow, and wing size large or small or miniature. So we can easily identify these characters under the low power microscope. So that is why Morgan chose Drosophila for his experiment, or to prove the chromosomal theory of inheritance. Now if we see linkage and recombination, what is the meaning of linkage? Linkage means grouping, association. If two friends sitting aside or together in a classroom, so these are known as linked genes. So the more linkage will be here, so crossing over would be low, or there is no crossing over will take place between them. So basically A और B को हम अलग नहीं कर सकते. if तीसरा दोस्त बैठा है लेकिन वो दूर बैठा है तो हम इसकी क्रॉसिंग ओवर इजीली कर सकते हैं. सो दीज आर द क्रोमैटिड्स. इफ आई टेक दिस chromosome, so these are the two sister chromatids, and if I take this and this, these are non-sister chromatids. So these are homologous pair of chromosome. These are two homologous chromosomes. So A and B are linked genes. We cannot take them apart, and if we have to do make new combinations, so we need to take these two to cross over and make the new combinations, because they are sitting very far from each other. So they capital A, capital B, capital A, capital B, capital A, capital B. So in three scenarios we see here that A and B are linked. तो ये अलग अलग नहीं बैठे हैं, ये एक साथ ही हैं. चेंज लाना होगा तो हम इसमें लेके आएंगे. तो ये क्या है? ये जीन्स हैं. एक क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमैटिड के अंदर ये जीन्स हैं. सो होमोलोगस पेयर लिया है हमने. उसमें अगर हमें क्रॉसिंग ओवर करानी है तो हम किसकी कराएंगे? बी और सी की, ना कि ए और सी, क्योंकि बी और सी नियर बाय हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी हैं. ये भी हैं डिस्टेंस पे, बट ये थोड़ा ईजी रहेगा. बी और सी की हमने क्रॉसिंग ओवर कराई. तो क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन के आए? ए और बी तो साथ में ही बैठे हैं, लेकिन चेंज किस में आया? इसमें आ गया, इसमें आ गया. ठीक है, नए कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर? So homologous chromosome exchange equal segments. Homologous chromosomes exchange equal segments. This process is known as crossing over. So हम crossing over किस में देखते हैं? Meiosis के portion division में देखते हैं. So these crossing over they form new combination of genes. So these new combinations are called recombinants. So these new combinations are called recombinants. So we can also say that linkage is directly proportional to recombination. अगर हमारे linked genes हैं तो उतना ही कम recombination होगा. अगर हमारे linked genes कम है, सपोज A और B हैं, ये दोनों linked genes हैं, तो इनका recombination उतना ही कम होगा. recombination और combine होने के chances किसके? A, B और C में, तीनों में देखें अगर, तो इनका recombination कम होगा. नए कॉम्बिनेशंस इनके कम बन पाएंगे. लेकिन अगर हम देखें ए और बी के जो लिंक जीन्स ज़्यादा हैं तो उनके रिकॉम्बिनेशन कम होंगे. सेम चीज़ है, मतलब ए और बी के जितने लिंकेज होगा उतना उनका रिकॉम्बिनेशन कम होगा. और अगर मैं बी और सी की बात करूँ तो दे आर वेरी फार. सो इनके रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे. तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन बनेंगे. जितनी कम दूरी होगी उतने कम रिकॉम्बिनेशन बनेंगे.
तो मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उन्होंने क्या लिया, ड्रोसोफिला लिया। वाइल्ड टाइप मीन्स नॉर्मल, सो दीज आर नॉर्मल ट्रेट्स, नॉर्मल कैरेक्टर्स। सो नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या हैं, ब्राउन बॉडी, रेड आई, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्लस साइन है दिस इज फॉर द वाइल्ड टाइप। सो ब्राउन बॉडी, रेड आई मेल लिया, एंड म्यूटेंट कैरेक्टर क्या लिया इन्होंने, जिसमें हम जिसकी वजह से चेंज आएगा, येलो बॉडी, वाइट आई फीमेल। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि इनका जो अच्छा सपोज बॉडी कलर एंड ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी क्या है, बॉडी कलर है। रेड आई और वाइट आई क्या है, यहाँ पे रेड कलर के जीन्स हैं। तो बॉडी कलर और रेड कलर में क्या हुआ, ये दोनों पास पास थे, यानी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब थे, ये दोनों पास थे। तो इनमें क्या होगा, लिंकेज, इनमें क्या होगा, लिंकेज ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई इनमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा। गॉट इट। सो दीज आर क्लोजली लिंक्ड जीन्स। अगर ये क्लोजली लिंक्ड हैं तो इनमें रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट हुआ, उन्होंने देखा 1.3%। तो यानी पेरेंटल जीन्स कितने आ रहे हैं उनके अंदर, 98.7। 100 माइनस 1.3 इज 98.7। तो नए कॉम्बिनेशंस इनके अंदर 1.3 बने, और जो पेरेंट्स की प्रोजेनी चलती आ रही थी नई जनरेशन में वो 98.7% है। तो दीज आर क्लोजली लिंक्ड जीन्स। अगर उन्होंने दूसरा क्रॉस कराया तो उसमें क्या देखा, उन्होंने देखा आई कलर लिया, दे टेक आई कलर एंड ही टेक विंग साइज। तो आई कलर और विंग साइज में जब उन्होंने कॉम्बिनेशन कराने की कोशिश करी, क्रॉसिंग ओवर कराने की कोशिश करी, तो what they got is eye color and wing size are loosely linked, means आई कलर यहाँ होगा और विंग साइज यहाँ पे होगा, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन उनका प्रेजेंट होगा। तो दे आर, लिंकेज उनमें क्या था बेटा, लिंकेज उनमें था कम, तो उनके पास रिकॉम्बिनेशन कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यानी नई कॉम्बिनेशन बनने की कैपेसिटी ये वाले जीन्स ज़्यादा रखते हैं। तो लूजली लिंक्ड जीन्स थे एंड रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा था, उतना भी ज़्यादा नहीं था बट हाँ कॉम्बिनेशन तो ज़्यादा है ही। और पेरेंटल जनरेशन के जो नई प्रोजेनी बन के आ रही थी वो कितना परसेंट थी, 62.8%। तो ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम आप अच्छे से कर लेंगे, एंड इफ़ यू वांट नोट्स you can just comment it down. So after watching this lecture you need to write down some questions in your notebook along with answers. So I will pin it down in the comment section. So write it down in your notebook. Thank you very much.